welcome back to my channel. So today we will do the last lesson, means the first chapter of our English class, that is the last lesson. Means the first class is started with the last lesson. So ironic this chapter is. So now मैं बता देती हूँ मेरी इंग्लिश की अप्रोच कैसे रहेगी. सी पहले you any copy you can make, means English, you should have 2 copies or at least 3 copies. First copy of this one book, Flamingo, then second book of second copy, means these 2 copies are for this book and another book, and then third copy is for grammar, RC comprehension, or this. For this is the third copies for this. So make 3 copies, and in the first copy, means there whichever copy you are making for this book Flamingo, we are starting with the last lesson. So this chapter, you should write the chapter 1, name of the chapter, and then about the author. Then you should write 3 points about the author. 2 I will tell you, and then third one you have to find it by yourself. And because it is for that I'm saying this, because from that thing the questions can be asked, anything can be asked. So you should have external information. So you are not in now the small classes. Big 12th, you are in 12th. You are ending the school's life. Now you are going to college. So you have to develop that habit of searching anything. You have to develop the habit of searching the thing by yourself, and then they can be asked. So now let's get started. The last lesson, and please be dedicated. Don't be don't be distracted. Now I have said you, and whatever I am marking the key points or I am telling anything, please write it in your copy and write in the form of key points, keywords. Like from that one word, you can memorize everything, every single thing from that particular word. So like that, you should make the notes. Now let's get started. Today we are starting with English, the last lesson, the first chapter of English. So it's now about the author, Alphonse. Okay, about the author Alphonse Daudet. Okay, अब ये 1840 में इसका बर्थ हुआ, 1897 में ये मरा. सो ये था. तो पहला पॉइंट अपना क्या होगा, या अल्फोंसो डाउडेट के बाद आप क्या लिखोगे, 1840 टू 1897. ठीक है. अब ये था, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. तो ये वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. सो ये अल्फोंसो डाउडेट जो था, ये एक सेकेंड पॉइंट हमें ये मिला कि ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट था. ठीक है. नहीं, फर्स्ट पॉइंट में ही लिखना हो, ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट था एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर था. इसने ये लास्ट लेसन लिखा था, इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर, 1870 से 1871. ये सेकेंड पॉइंट होगा कि जो द लास्ट लेसन इसने जो लिखा वो ड्यूरिंग दैट डेज जब फ्रैंको पर्शियन वॉर हो रहा था, 1870 से 1871 तक जब वो फ्रैंको पर्शियन वॉर हो रहा था, तब उस समय में इसने ये लिखी थी. इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क. जो फ्रांस था वो अब डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क. ठीक है. तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए. दैट इज की फर्स्ट था कि ये जो अल्फोंसो डाउडेट है वो 1840 से 1897 मतलब 1840s का बोर्न है और 1897 में इसका डेथ है. Was a French novelist and short story writer. Okay. अब इसने the last lesson is set in these days of the Franco-Persian War, 1870 से 1871 तक. अब जहाँ पे फ्रांस was defeated by Prussia led by Bismarck. फ्रांस था वो डिफीट हो गया था प्रूशिया से led by Bismarck. Okay.
Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. इन नाउ अब इसमें बोला कि प्रूशिया क्या क्या कंसिस्ट करता है. प्रूशिया कंसिस्ट ऑफ दी उसके पास क्या कौन कौन से नेशंस है. जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया. In this story, the French districts of Alice and Lorraine have passed into Persian hands. तो ये जो दो नेशन है वो एल एंड लॉरेन वो प्रूशिया के हाथ में चले गए. प्रूशिया जीत गई है वो. सो इसलिए प्रूशिया के हाथ में चले गए. तो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल. ठीक है, तो ये हमें बता रहे हैं कि लाइफ एट स्कूल पे क्या इफेक्ट आया होगा इसका, एजुकेशन पे क्या इफेक्ट आया होगा इसका, जो चिल्ड्रन है उन पे क्या इफेक्ट आया होगा इसका. ठीक है, तो लास्ट लेसन मतलब कि लास्ट लेसन मतलब यही है. लास्ट लेसन मीन्स कि उस समय का ये लास्ट लेसन था. मतलब वो फ्रेंच छोड़कर या तो अब जर्मनी पढ़ाएंगे. तो ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. तो दो पॉइंट्स हमें मिलते हैं. तो थर्ड पॉइंट यू शुड राइट बाय ओन. आपको योर होमवर्क इज कि आपको निकालना है नेचर ऑफ द वर्क. कैसे ये अल्फोंसो डाउटेड वर्क करते थे और इनके कुछ एग्जाम्पल्स, इन्होंने क्या क्या लिखा, क्या लिखी. ठीक है, एग्जाम्पल आपको इसमें मिले. लेट्स स्टार्ट. ओके नाउ हाँ ओके. I started for school very late that morning. Okay, I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. तो ये बोल रहा है कि इसने नरेटर, कौन बोल रहा है, नरेटर का नाम है फ्रांस. तो फ्रांस बोल रहा है कि मैं बहुत स्कूल के लिए बहुत लेट था उस मॉर्निंग और मुझे ये था कि मुझे टीचर डांटेंगे. एम हैमल जो टीचर थे वो मुझे सर डांटेंगे. और उन्होंने ये बोला था कि वो फ्रेंच सीख रहे थे ना, तो फ्रेंच लैंग्वेज के पार्टिसिपल्स आपको याद करने हैं. तो मैं आपसे पूछूंगा. तो उसको फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था और वो ये इस मूड में नहीं था कि वो स्कूल जाए. ठीक है, तो कभी कभी बच्चे ऐसे करते हैं. लाइक हाँ, आप लोगों में से कोई होगा, मैं भी होंगी कि लाइक ऐसा था कि मैं मुझे क्लास नहीं याद पर था कुछ ऐसा कि मैं स्कूल मतलब मैंने कोई होमवर्क नहीं किया था. मैं आई थिंक सो कुछ ऐसा था. मैं होमवर्क नहीं किया था, मैं बाहर खेल रही थी, मैं मम्मी पापा के साथ घूमने गई हुई थी, क्या कुछ ऐसा था. मैंने होमवर्क नहीं किया. तो कल वाइवा मतलब एक ओरल टाइप का टेस्ट था, मैम सबसे पूछती है. तो ना कल मेरा स्कूल जाने का मन नहीं था, तो मैंने ऐसे ही नाटक किया कि मम्मी स्कूल नहीं जाना, पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है. तो इसका भी वैसे ही स्कूल जाने का मन नहीं. मैं भी फ्रांस की जैसी थी पर अब धीरे धीरे बड़े हो गए, वो आदत छूट चुकी है. ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग करते होंगे अभी भी. ओके नाउ स्टार्ट. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. फॉर अ मोमेंट उसने सोचा कि अब मैं स्कूल में नहीं रहूँगा. उसने ये सोचा कि कि मैं भाग जाता हूँ, स्कूल से भाग जाता. कि भाई स्कूल पढ़ाई करने के लिए होता है पर हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि ओके. तो कहते हम ओके. सो मैंने ये बताया था कि फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. मतलब कुछ होते हैं ना कि मैम क्लास में पढ़ा रही है और हमारा ध्यान कहीं और बाहर होता है. तो मतलब हम फिजिकली क्लास में है, मेंटली हम कहीं और है. तो वैसे ही ये था कि भाई अब भाग जाओ क्लास से, क्लास में समझ नहीं आ रहा, भाग जाओ. और किसी को नींद आती है क्लास में, तो ऐसा. ठीक है, फिर सॉरी
It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. अब ड्रिलिंग मतलब नहीं ऐसे ड्रिल कर नहीं ऐसे नहीं ड्रिलिंग मतलब कि वो मार्च पास्ट कर रहे हैं या वो कमांड देना सिखा रहे हैं या वो अपना मार्च पास्ट कर रहे हैं कमांड देना सिखा रहे हैं तो वो उसको बोलते हैं ड्रिलिंग। ठीक है, तो ये था कि उनका बाहर अब वो बाहर दिख रहा था जैसे फिजिकली प्रेजेंट था उस क्लास में पर वो बाहर दिख रहा था। कहाँ वो क्या दिख रहा था कि क्या देख रहा था कि बर्ड्स जो हैं वो चर्पिंग बाहर पहले वो देखा था। इट वाज सो ब्राइट सो वार्म, बहुत बर्ड्स चिर्प कर रही हैं एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ स्वॉमिल। जो प्रूशिया के सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं मतलब मार्च पास्ट और ये सब की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स। उसने बोला कि ये सारी चीज़ें बहुत टेम्पटिंग लग रही कि मैं बाहर जाकर ये सारी चीज़ें करूँ, ये पार्टिसिपेंट्स क्या बेवकूफ़ चीज़ है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। तो उसने बोला अरे छोड़ो छोड़ो जल्दी भागो नहीं तो मैम सर डांटेंगे, भागो भागो भागो। ऐसे में भाग रहा था। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि भाई छोड़ो भाग, गाड़ी में जाए चिड़िया, गाड़ी में जाए डरेंगे, हम भाग रहे हैं, हमको स्कूल के लिए जाना है सर। ठीक है, अब हाँ सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल रही थी कि देखो तो ये इसमें यहाँ तक ये देखो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है इसमें देखो इसका अपीयरेंस सो वार्म सो ब्राइट द birds were chirping at the edge of woods uh, in the open field back of the sawmill. The Prussian soldiers were drilling. So ये मतलब ये बता रहा है उसका माइंडसेट। पहला उसका माइंडसेट था कि उसको स्कूल जाना नहीं था क्योंकि उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं था। दूसरा उसका मतलब अब उसका उसने क्या ऑब्जर्व किया, तो क्या ऑब्जर्व किया उसने पहला कि इट वाज सो वार्म सो ब्राइट बर्ड्स चirping कर रही है एट द एज ऑफ द वर्ल्ड। और जो एट द बैक ऑफ द स्वामिल जो प्रूशिया सोल्जर्स है वो प्रैक्टिसिंग ड्रिलिंग मार्च मतलब ड्रिलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। ठीक है, पर उसने ये रेजिस्ट कर कर वो क्या बोला इसको छोड़ो घर में जाने दो जो भी हो रहा है घर में जाने दो मुझे क्या मुझे स्कूल भागना है। ठीक है, तो उसको डर था कि उसके साथ उसको पनिश करेंगे। ठीक है, हाँ when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board। अब जो उसके बाद जब एक टाउन हॉल से वो निकल गया था तो अब वो जैसे टाउन हॉल से निकला तो एक बुलेटिन बोर्ड देखा होगा आपने जैसे स्कूल का नोटिस बोर्ड स्कूल के नोटिस बोर्ड या आप लोग में से कोई लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देखते होंगे कोई लोग। मैं पहले देखती थी, हाँ मैं भी देखती थी। ठीक है, तो उसमें जो भिड़े होता है जो आत्माराम तो कलाम भिड़े वो जो बोर्ड पे हमेशा या तो सुबह क्या लिखता है क्या बोलते हैं हाँ सुबह सुबह समाचार लिखता है या कुछ कोट लिखता है कुछ ऐसा लिखता है या कुछ कभी कभी नोटिस लिख देता है कभी कभी नोटिस लिखता है। तो वो बुलेटिन बोर्ड है स्कूल के बाहर। अगर आपने देखा होगा कि स्कूल के बाहर भी लगे रहते हैं मतलब एक बोर्ड लगा रहता है जहाँ पे नोटिस लिखा रहता है कि आज ये होता है ऐसा होगा आज ये लास्ट है ये वो है तो मतलब ऐसी चीज़ें लिखी रहती है। तो वही क्राउड जमा था। ठीक है, अब ठीक है इसके लिए क्राउड जमा था उसके लिए उसमें कोई नोटिस आया होगा ना तो उसमें क्राउड जमा। तो फॉर द लास्ट 2 years all our bad days had come from there, the lost battles the draft the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now। उसने बोला कि अब सारी मतलब पहले हाँ कि पहले सारी बुरी चीज़ें अब इस और क्या होगा इसमें
बुरी चीज़ यही थी कि हम बैटल लॉस्ट कर लिया, हम बैटल्स मतलब हार गए हम, जो मतलब किसी ने और कमिटी मतलब कमांडिंग ऑफिसर आ गया नया, कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया, कुछ सारी बुरी खबरें आ रही हैं। तो अब क्या होगा, अब इससे क्या बुरा क्या हो सकता है? तो उसने खुद को सोचा अब क्या इससे बुरा क्या हो सकता है? हम बैटल लॉस हो गए, हम हार गए, हम सब ऐसी कोई नया ऑफिसर आ गया, हाँ पुराने ऑफिसर को भगा दिया, ऐसा कुछ हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो सारी बुरी न्यूज़ आ रही है। तो अब इससे बुरा क्या होगा, और बुरी न्यूज़ आ गई होगी, पता नहीं क्या होगा, इससे बुरी न्यूज़ क्या होगी, वैसे सोचने लगा। ठीक है, देन अब वो रुका नहीं। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, ठीक है, तो जब वो पास हो रहा था, when I passed the town hall, हाँ ये sorry, then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, the watcher who was there with his appreciate apprentice reading the bulletin, जो वो bulletin पढ़ रहे थे, called after me, don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time. अब ये बोल रहे थे कि भाई, हाँ सॉरी, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। हाँ, ये बोल रहे थे कि जो ब्लैक स्मिथ था और जो वॉचर था, तो वो यही अपने उसके साथ खड़ा था, क्राउड के में ही खड़ा था कि भाई मुझे पढ़। तो उसने आवाज़ दी उस फ्रांस को, नरेटर को, कि अरे भाई 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 रुक जाओ रुक जाओ, इतने हरी में मत करो, भागो मत भागो, पहुंच जाओगे स्कूल, बहुत टाइम है बताओ, पहुंच जाओगे तुम स्कूल, है ना? तो हाँ हाँ पहुंच जाओगे बहुत टाइम पहुंच जाओगे तुम स्कूल। तो I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of it. उसको मुझे लगा, नरेटर को लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसको छोड़ो, घर में जाए, छोड़ो, मैं भाग रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग रहा हूँ। उसने नेवर माइंड करके वो भाग रहा है। फिर वो जो स्कूल का जो छोटा सा गार्डन होता है ना, वहाँ पे सो के हाय हाँ मतलब सांस बाहर ले रहा था, तो हाँ मैं थक गया, मेरा पसीना, ऐसा कर रहा था। ठीक है, ओके ठीक है। So I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. मैं थक गया। ऐसे usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. यूजुअली ये होता है ना, जब स्कूल स्कूल खुलता है तो सब हसल बसल हो जाती है कि जल्दी बच्चे रश कर रहे होते हैं यहाँ से वहाँ से, मतलब स्कूल एंटर जल्दी करना है, ये करना है, जल्दी जल्दी मिस ना हो जाए क्लास। सब ऐसा वो चेयर ऐसे डेस्क खिसका रहे हैं, चेयर खिसका रहे हैं, वो आवाज़ आ रही है, और वो छोटे छोटे वो ऐसे लर्न कर रहे हैं, ऐसे जो जो भी उन्होंने पढ़ा है वो उसको पढ़ने की मतलब अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो छोटे बच्चे वो बाबा ब्लैक शीप है ऐसे बोल रहे हैं कान बंद कर कर, मतलब वो रिमेम्बर करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने पढ़ा, वो रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने पढ़ा। तो ये सब हो रहा है, मतलब वॉइसेस आती है, और किसी को स्केल पढ़ रहा है तो वो स्केल की आवाज़ आती है धा धा, तो वो ऐसी यही होता है स्कूल में। ठीक है, वो बेल की आवाज़ आ रही है, पीरियड ओवर हो गया, ये पीरियड बच गया, ऐसे। ठीक है, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, पर अभी वो पूरा स्टिल है,
कोई हसल बसल नहीं है, कोई कान बंद करके बाबा लेक्चर नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, टीचर्स भी बैठे हैं, सब मतलब कोई चू की आवाज़ तक नहीं आ रही है। विच आर हैंड, ठीक है, I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. तो उसने बोला कि उसने काउंट किया कि क्या हो रहा है, क्योंकि भगदड़ कमोशन मतलब भगदड़ मचना, एक्साइटमेंट के थ्रू, आज ये चैप्टर है, चलो भागो यहाँ से, हम लोग क्लास में एंटर करना है, यहाँ से कोई बच्चा वॉशरूम जा रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, तो हड़बड़ मच जाती है। तो वैसे उसने देखा कि आज सिर्फ साइलेंट हो रहे, तैसे भी चू आवाज़ नहीं निकल रही है, ठीक है, डेस्क विदाउट। अब उसने सोचा कि इस हद उसमें मैं अंदर चल जाऊँगा बिना कुछ किसी ने देखा मुझे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट। जैसे संडे मॉर्निंग होती है ना, बिल्कुल शांत से उठना। संडे को देखा है, संडे को हम लेट तक कुछ अभी भी बच्चे होंगे जो लेट तक सोते रहते हैं, 12-1 बजे तक उठते हैं। मैं भी थी, अभी क्यों नहीं, मैं रात को करती थी। तो रात को संडे को अच्छी नींद, ऐसे ऐसे नींद हमारी लेकर उठते हैं 12-1 बजे तक, है ना। तो संडे वो रिलैक्स होता है, तो चाहे वैसे ही संडे मॉर्निंग की तरह बिना एक चूक से वो वैसा ही था, ठीक है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ओके, थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेस। अब उसने मतलब एक विंडो थी, उससे उसने झाँका ऊपर कि भाई क्लासमेट्स तो मेरे सारे क्लास में ऐसे झाँकते ना, हाँ सब जगह पे क्लासमेट सब जगह बैठे हुए हैं अपनी सीट पर, ठीक है, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन एंड हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। एम हैमर का जैसे ये रूलर है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ रूलर, वो अपने उसके नीचे ऐसे दबा के ऐसे ऐसे वॉक कर रहा है ना, ऐसे 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 वॉक कर रहा है, ठीक है। आई डोंट नो कि आपको दिख रहा होगा कि नहीं, पता नहीं, ठीक है। I had to open the door and go in before everyone. उसने ऐसे गेट खोला और वो धीरे धीरे जा रहा था, क्योंकि उसने सोचा ना कि कोई मुझे देखे ना। You can imagine how blushed and how frightened I was. ऑब्वियसली आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि सब लोग बैठे हुए हैं और आप लास्ट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो हाउ एम्बैरेसमेंट वो होती है कि भाई सब लोग आ गए, तुम इतनी लेट हो गई, तो बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है। जैसे ये मेरे साथ भी होता था कि जैसे मैं बस से आती थी, स्कूल जाती थी, तो होता था ना कि बस लेट हो गई, बस का टायर पंचर हो जाता था, कभी बस लेट हो जाती थी, तो बस जो तो हम स्कूल लेट पहुंचते थे। असेंबली हो गई, एक बार तो क्या हुआ, असेंबली हो गई थी, फिर हम पहुंचे थे बस स्कूल। तो अब मैम, फिर जब आप क्लास में घुसते हो तो सब लोग आपको ही देख रहे होते हैं कि भाई इतनी लेट कैसे हो गई। और मैम फिर और पूछती है क्यों लेट हो, डंडा पड़ेगा, क्यों लेट हो, है इतनी लेट, सब आ गए, असेंबली भी हो गया, सब हो गया, लेट क्यों होगा, ऐसे पूछती है, फुल ऐसे मारती है, डांटती है, चिल्लाती है, ठीक है। तो वो बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है। बट नथिंग हैपेंड। उसने जैसे सोचा था वैसा कुछ नहीं। Am Havel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." तो उसने बोला, जो उसने सोचा था वो कुछ नहीं हुआ। जो उसने सोचा था वो कुछ नहीं हुआ। और जो उसने बोला, एम हैमिल ने बोला, उन्होंने फ्रांस को देख लिया एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर स्टार्टिंग विदाउट यू। हम लोग तुम्हारे बिना स्टार्ट कर रहे थे। ओह नाइस, ऐसे टीचर हो ना, क्या बात होती है। पर ओके, लेट्स आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माय डेस्क। Not till then, when I had got a little over my fright, and I see that a teacher had on his beautiful green coat, ठीक है, beautiful green coat, frilled shirt, and the little black
silk cap, all embroidered, that he never wore except inspection and price list. अब उसको भी थोड़ा अनयूजुअल, अब ऑब्वियसली अनयूजुअल लगेगा क्योंकि जब वो स्कूल आया तो कोई हसल बसल नहीं थी, कुछ नहीं था, मतलब स्कूल का स्कूल जैसे दिखने रहा था, संडे मॉर्निंग लग रही थी। और टीचर जो जब हम एंटर करते हैं कि स्कूल में जब से लास्ट, तो टीचर भी तो काइंडली बोल रहे हैं कि जाओ बैठ जाओ, और कि जाओ हम तुम्हारे बिना स्टार्ट कर रहे थे कि हाँ। और पहले ये भी हुआ था कि वो कौन था, ब्लैक स्मिथ बोल रहा था, अरे बच्चा अभी मत जाओ, धीरे धीरे जाओ, भागो मत, अब प्लेंटी ऑफ टाइम में तुम स्कूल पहुंच जाओगे, ठीक, बहुत टाइम पड़ा है। तो पहला ये हुआ। फिर उसके बाद हसल बसल नहीं पहुंच, उसके सर ने उसे देखा तो डांटा नहीं, बोला कि हम लोग तुम्हारे बिना स्टार्ट कर रहे थे क्लास। नहीं तो अगर कोई और दिन होता, तो अगर वो आता तो क्या बोलते, अरे इतनी लेट कैसे, हाथ दिखाओ मारूंगा, क्यों इतनी लेट क्यों है, बड़ा जल्दी, ऐसा होता कि बहुत चिल्लम चोटी होती, डांट पड़ती है, ऐसा होता। ठीक है। अब तो बहुत उसको अनईजी टाइप का लगा, अनयूजुअल लगा कि ऐसा तो होता नहीं है। और उन ऊपर से जब उसने ऑब्जर्व किया, उसने नोटिस किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको थोड़ा अंडरलाइन करना कि ये अपीयरेंस जो है ना, ये पार्ट जो है, ये उसका अपीयरेंस बता रहा है कि वो कैसा था। क्योंकि वो जब इंस्पेक्शन का टाइम था, जब देखना था कि हाँ बच्चे सब अच्छे से बैठे हैं कि नहीं बैठे, उसका टाइम, और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता था, जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब ही वो ये पहन के आता था। क्या पहन के आता था, सॉरी, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, दिस फ्रिल्ड शर्ट and the black silk cap, all embroidered. और उसने and he never wore except inspection and price day. इंस्पेक्शन और प्राइस डेज के अलावा उसने ये कभी नहीं पहनी जो उसने अभी पहनी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है कि उसका अपीयरेंस क्या था, तो ये सब। अब क्या होता, besides, the whole school seemed so strange and solemn. अब उसको लगा कि भाई सुबह से मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना, कि सुबह से ही वो सर ने मुझे डांटा नहीं, वो बोला हम तुम्हारे बिना शायद कुछ और शुरू कर रहे थे, तो ऐसा टीचर, वो ऑब्वियसली बहुत सरप्राइज हो गया कोई। तुम अब besides the whole school seemed, अब उसको लगने लगा स्कूल पूरा स्ट्रेंज लगने लगा, सोलम लगने लगा, मतलब सीरियस लगने लगा। क्या हो गया यार, आज आज कौन सा दिन है, आज क्या है। तो हम कुछ सोचने लगते ना कि जब हम स्कूल में जाते हैं और कुछ ऐसा नहीं हो रहा होता, तो हम सोच रहे होते हैं आज क्या हुआ, आज हम बोलते ना आज सूरज कहाँ से निकला, आज क्या हुआ, आज ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कौन सा दिन है आज, तो ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही फिर हाँ, बट द थिंग दैट solemn मतलब deeply serious, ठीक है, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. ओ अब देखो क्या हुआ था कि अब वो हम लोगों को, मतलब जो नरेटर, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पीछे नहीं बैठने देता, उनको बैक बेंचर्स नहीं बनने देता था। तो वो क्या करता था, वो बैक बेंचर्स नहीं बनने देता, फ्रंट में बुला लेता कि आओ सब सीरियस होकर पढ़ो, फ्रंट में तो अच्छे अच्छे बच्चे बैठते ना पढ़ते हैं। तो अब तो बैक बेंचर्स तो यूजुअली खाली थी, तो इसको अब इसने जब पीछे ऐसे पीछे मुड़ के देखा, तो जब ऐसे इसका ऐसे पीछे मुड़ के देखा, तो उसको क्या मिला, मतलब जो वहाँ पे कौन बैठे थे, विलेजर्स, एल्डर पीपल बैठे थे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया था, जो 7th पास थे, 8th पास थे, 2nd पास थे, 10th पास थे, और 1st पास थे, KG1 भी नहीं पढ़ा जिसने, मतलब काम करते रहते थे, ठीक है, अपने घर पे कुछ पैसा आ जाए। तो वो उनकी तरह जो स्टूडेंट्स जैसे बैठे थे वैसे वो बैठे हुए थे। कौन कौन था वो देखो, old Hauser with his 3 concerned hat. ओल्ड हाउसर था,
with these three guns in hand, the former mayor, मतलब former मतलब कि पहले, मतलब जो अभी मेयर है उससे जो पहले मेयर था वो फॉर्मर मेयर, and the former postmaster and several other besides. अब मतलब एल्डरली पीपल आए हैं, बहुत सारे पीपल आए हैं, मतलब ठीक है। एंड और मतलब बहुत एल्डर पीपल आए हैं जो सातवीं फेल, सातवीं पास है, फिर आठवीं पास है, 10th पास है, और फर्स्ट भी नहीं पढ़ी जिन्होंने, KG1 पास है, ऐसे लोग हैं, ऐसे आए हैं, एल्डरली पीपल आए हैं जिन्होंने पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया था। Everybody looked sad. Everybody was sad बैठे, नाराज बैठे. And Hauser had brought an old primer. Old primer मतलब एक reading book होती है, thumbed at the edges, and he held it open on his knees and his great spectacles lying across the pages. तो सब जो लोग हैं वो एक कोई सी बुक लाए हैं, कॉपी लाए हैं, वो देख रहे हैं, उन्होंने बॉक्स लेके रखा है, ऐसा हुआ है, मतलब सब अपनी चीज लाए, चश्मा लाया है जिनको नहीं दिखता, चश्मा लाया, चश्मे लेके ये पेंसिल लाया, ये सब लाया। While I was wondering about, हाँ sorry, एक मिनट मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, या तो वो अपनी कॉपी पे लिखो, या मतलब उसको अंडरलाइन कर लो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आ सकता है, या तो मैं बता दूंगी कौन सी वो आएंगे कोड्स आ सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो मैं बता दूंगी। बस आप वो देखना कि ये की पॉइंट्स इम्पोर्टेंट करने या नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पर, जिससे आपको अच्छे से हो, ठीक है। फिर while I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grace and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is my last lesson I shall give you." ठीक है, तो उससे जैसे जो वो ऐसे पीछे देख रहा था कि हाँ बैक बेंचर्स हैं, ऐसे पीछे देख रहा था, ऐसे मत सोचना, मैं बस आपको बता रही, तो ऐसे पीछे देख रहा था कि हाँ बैक बेंचर्स मतलब विलेजर्स के पीपल आए हुए हैं और ये सब हुआ हुआ है, और मतलब जो एल्डरली पीपल है वो सब आए हैं। और जब इस एम हैमल ने जब स्टार्ट किया, तो इसने जब उसने बोला माय चिल्ड्रन, तो सीधा ही ऐसे हुआ कि क्या बोल रहा है, उन्होंने आपको अपनी चेयर पे ऐसे, उन्होंने बैठे हुए अपनी चेयर पे, और फिर वो माउंटेन उन्होंने एडजस्ट किया अपनी चेयर और वो बैठे। तो जब इसने बोला माय चिल्ड्रन, तो ये ऐसे से ऐसे हुआ, इसने बोला देखा कि माय, फिर उसने बोला कि माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alice and Lorraine. The new master comes tomorrow. तो ऐसे दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स फॉर टू मी। अब वो ये बोल रहा है कि हाँ हाँ, अब वो ये बोल रहा है कि भाई, अब वो जैसे उस पीछे को बोल रहा था कि जो विलेजर्स हैं एल्डरली पीपल है, जैसे वो जो एम हमल है वो अपनी चेयर पे माउंटेन हुए, और वो उसने सीधे देखा, और जब वो बोल रहे थे कि माय चिल्ड्रन, ये मेरा आखिरी लेसन है, मैं ये दे सकता हूँ कि अब ऑब्वियसली प्रूशिया जीत गया था, तो जर्मन पढ़ाई जाने वाली थी, तो स्कूल्स में सारे जर्मन, और ये ऑर्डर आ चुका था कि जर्मन तुम लोग पढ़ना है एलिस और लॉरेन में। तो और उसने बोला था कि तुम्हारे मास्टर न्यू मास्टर कल आएंगे, ये लास्ट लेसन है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत अटेंटिव होकर पढ़ो ये लास्ट लेसन। और फिर उसने बोला ये जो वर्ड्स उसको लगे ये बहुत थंडर क्लैप थे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, दिस इज अ हैशटैग, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया, ठीक है। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स फॉर मी, ठीक है। तो ये आ सकता है आपको एक्सप्लेन इसको करो, तो आप ऐसे लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ, oh the riches, that was what they had put up on the town wall। फिर से सोचा,
अच्छा, ये चीज थी जो वो बुलेटिन बोर्ड में लिखी थी, तभी इतना क्राउड जमा था। ओ, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, तभी तो इतना क्राउड जमा था, पता नहीं क्या। ठीक है, तो फिर उसने बोला my last French lesson, why I hardly knew how to write। अब उसने बोला मैं अब उसको भी ऑब्वियसली दुख होगा ना कि भाई टीचर है, भाई को बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ स्कूल में, उसको भी दुख हो रहा होगा ना कि अब, और वो उसने एक तो उसका एडवांटेज नहीं लिया, उसने उसका और डिसएडवांटेज लिया कि मैं कल करूँगा। देख, माई लास्ट लेसन, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds, eggs, or going sliding on the sand. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And I'm hammered too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब उसको अब ऑब्वियसली उसको सैड हुआ कि भाई मैं जैसे हम बोलते हैं ना कि ये हाँ चलो ये कल देख लेंगे, ये कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, सब कल कर लेंगे, ठीक है। तो उसको भी वो लगा कि भाई अब तो मैं आज से शुरू करने वाला था, वो तो जाहिर है मैं कितना मतलब मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं काश अच्छे से पढ़ लेता, मैं काश ये सब बाहर फिजिकली प्रेजेंट होकर मेंटली बाहर देख नहीं रहा था, वर्ड्स को झाँक नहीं रहा होता, अच्छे से पढ़ लेता। और जो मेरी बुक्स थी, जो अभी तक मुझे न्यूसेंस लग रही थी, अब वो मुझे अच्छी लग रही, जो हैवी लग रही थी पहनने में, मतलब बैग हैवी लगता है ना, तो जो मेरी ग्रामर बुक थी, हिस्ट्री बुक है सेम्स की, जो वो मेरे पुराने फ्रेंड्स थे, अब मैं उनको गिव अप कर दूँ। एंड एम हैमर को भी, जो टीचर, तो वो ये सब भूल गया कि भाई उसको वो सोचता था, उसको डांट पड़ती थी, उसका उनका रूलर वो भूल गया, वो सब भूल गया उनका कि भाई अब, और उसको ये याद आने लगा कि अब मैं उनसे कभी नहीं मिलूँगा, मैं कैसे करूँगा, काश मैं पढ़ लेता। जो बोलते हैं ना कि कल आज कल कर लेंगे, कल वो कल कभी नहीं होता। वो बोलते हैं ना आज करे सो अब, नहीं हाँ यही होता है ना, आज करे सो अब करे सो अब, कुछ ऐसे ही होता है। अब आज करे सो कल, कल करे सो अब, ऐसे ही कुछ था, ठीक है। तो आज करे तो आज करे सो अब नहीं, आज करे सो कल, कल करे तो अब, ऐसे कुछ था, मैं भूल रही हूँ, ठीक है। तो मतलब कि मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि कल पे डिपेंडेंट मत रहो, आज करो जो करना है, नहीं तो कल फिर तुम अपने बैकलॉग्स बनवाते जाओगे, बस यही है, ठीक है। फिर अच्छा ये हुआ, तो अब ये जो है ना, इसने जो बताया ये जो थिंग है, यहाँ तक जो है ना, ये उसका ये उसकी फीलिंग्स को बता रहा है। कि उसकी थोड़ी गंदी हैंड राइटिंग है इसमें मेरी, वैसे अच्छी है। तो वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि उसको कैसा लग रहा है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है नरेटर, वो सब बता रहा है कि, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको माफ कर लेना, ठीक है। आई couldn't give up। अरे अरे ठीक है, तो आई couldn't give up, तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ जो मैं माफ कर रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, या तो लिख लो या तो नोट डाउन कर लो, और अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो तो दैट इज बेटर, ठीक है।
आपके आ सकते हैं 95% प्लस। ओके, तो आगे बढ़े। पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. तो अब ये हुआ ना, अब उसको समझ में आया कि हाँ, कि इसका लास्ट लेसन है। तभी जो पीछे लोग बैठे हैं बैक बेंचेस में, जो लोग जो यूजुअली एम्प्टी होती है, वहाँ पे लोग बैठे हैं, विलेजर्स के लोग बैठे हैं। और अब उन्होंने अपने जो प्राइज सेरेमनी के जो इंस्पेक्शन के जो क्लोथ्स पहनते हैं वो पहने हैं, और मतलब उनका लास्ट है, तो वैसे ही ये लोग मतलब इसलिए वो उनको थैंक देने आए होंगे या कुछ ऐसा जेस्चर करने आए होंगे। ठीक है, तभी लोग एकदम इतना सा भी चू नहीं निकाल रहे अपने मुंह से, आवाज नहीं हो रही, एकदम साइलेंट है स्कूल। अब ठीक है, इट वॉज इन हाँ ठीक है, why the old okay done. It was because they were sorry to that they had not gone to school more, क्योंकि ये लोग सॉरी फील कर रहे थे कि भाई अगर हम स्कूल चले गए होते तो हमें ये सब आ रहा होता, हमें हाँ हम जब स्कूल चले गए थे तो हमें ये सब आ रहा होता। तो it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो अब वो बोल रहे थे कि ये उनका वे है थैंक करने का, जो उन्होंने 40 इयर्स ऑफ सर्विस उन्होंने दी। अब आप सोच सकते हो कि 40 इयर्स ऑफ सर्विस को स्कूल में उन्होंने दिया, जो उनकी सेकेंड हाउस जैसा था, और वो उधर से जा रहे हैं, मीन्स वो बेघर हो रहे हैं, मतलब उनका जा रहे हैं वो लोग। तो आप सोचो ना, 40 इयर्स ऑफ सर्विस, कितने साल, और अब वो जा रहे हैं। क्या दुख हो रहा होगा, जो जहाँ जिसको वो पढ़ा रहे हैं उनको कितना दुख हो रहा होगा। तो क्योंकि वो बहुत पढ़ा है ना, यूज टू हो गए उस हैबिट से, तो वो चाहते हैं। ठीक है, तो ये उस जो विलेजर्स का थैंक गिविंग था उन टीचर को, जो जा रहे थे 40 इयर्स की सर्विस देकर। While I was thinking of all this, I heard my name called. अब जैसे ही वो ये सब सुनने लगा हाँ, तो जैसे ही उसने ये सब सुना तो वो सोचने लगा ऐसी चीज़ें, तो उसको लगा कि उसका नाम बुलाया, ऐसे उसको लगा। इट वॉज माई टर्न टू रिसेंट। अब उस टाइम उन्होंने दिए, हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के पार्टिसिपल्स दिए थे याद करने के लिए, तो वो तो याद नहीं करके आया था। तो वॉट वुड आई नॉट, फिर वो ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे खड़ा हुआ। ठीक है, मैं खड़ी होंगी तो आपको दिखूंगी नहीं, ठीक है। तो why would I not have enough to be able to say that dreadful rule for the participants, although very loud and clear and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. वैसे खड़ा था, ऐसे ऊपर खड़ा हुआ, और वो बोल नहीं जा रहा था, वैसे वो उसके दिमाग में मिक्सअप, जैसे होता है ना कि एग्जाम के दिन में हमारा सब मिक्सअप हो जाता है, तो वैसे उसके दिमाग में वो सब मिक्सअप हुआ, जैसे उसने टीचर के सामने बोला, और वैसे अपने डेस्क को पकड़ के खड़ा हुआ था, ऐसे नीचे देखे, वो डेयर नहीं कर पा रहे थे कि मैं ऊपर भी देखूँ। ठीक है, आई हर्ड एम हैमिल्ड से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। उसने बोला कि मैं तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूँगा, ठीक है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें बैड फीलिंग आ रही है अंदर से। सो हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, bah, I have plenty of time, I will learn it tomorrow, and now you see where we have come out. ah अब उसने क्या बोला, मिस एम हैमल ने क्या बोला कि आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, मुझे पता है कि तुम बैड इनफ फील कर रहे होगे कि, तो अब तुमको कैसे फील हो रहा है कि तुम एवरीडे बोलते हो ना, है कल कर लेंगे, ये तो बहुत समय पड़ा है, कल कर लेंगे, हाँ कल कर लेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलिस,
शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, मतलब सब पुट्स ऑफ है, हाँ कल कर लेंगे, अरे अरे हाँ हाँ कल कर लेंगे, कल कल अभी बहुत समय पड़ा है यार, कल कर लेंगे, अरे कल कर लेंगे। Now, those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little France. You have all the great deal to reapproach ourselves with. तो उसने बोला कि अब जो जर्मनी के जो अननोन टीचर आएंगे, वो तुमसे पढ़ेंगे कि है तुम्हें लिखने नहीं आया, तो तुम फ्रेंच में रह रहे हो और देखो तुम जर्मनी पढ़ रहे हो, कैसा लग रहा है पता ना। तो तुम्हें अपनी मातृभाषा ही नहीं आ रही, तो मैं अपनी मातृभाषा नहीं आ रही, वो क्या बोलते हैं टंग, कौन सी टंग, अपनी मातृभाषा लैंग्वेज ही नहीं आ रही फ्रेंच, कैसा लग रहा है बताओ जरा, कैसा लग रहा है फ्रेंच फ्रेंच में रहकर जर्मनी पढ़ना, हाँ 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 हम जीत गए ऐसा। तो ऐसे ही कुछ होता है। तो पर उसने बोला कुछ नहीं होता लिटिल पुअर फ्रांस, तुम अकेले नहीं हो, बहुत लोग हैं इधर जिन्होंने जो जैसे मैंने बताया था ना, जो पीछे जो लोग बैठे बहुत लोग हैं जो ऐसे टालते रहते अपना काम। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money and I। उसे बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुम्हें पुश नहीं किया, तुम्हें हमेशा काम पे भेजते रहे, या तुम फार्म पे पानी डालो, मिल्स मतलब या तुम खेत में फसल बो, ये सब कि थोड़े से पैसे घर पे आ जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है। और आई हैव बीन टू, मैं भी तो ब्लेम हूँ, जैसे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स, मैं भी, क्योंकि मैं एम हैमल ने भी बोला था ना कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। तो वो ऐसे बोलता है कि मैं जब मुझे, या तो अगर मुझे, मैं कभी बोलता हूँ ना किसी एक बच्चे को भेज देता हूँ कि जाओ प्लांट में पानी डाल के आओ, जाओ अभी ये छोड़ो, जाओ प्लांट में पानी डाल के आओ, या ये मैं कभी भी जब फिशिंग करने जाता था तो छुट्टी दे देता था कि जाओ आज छुट्टी चल मारो। तो मेरी भी गलती है, उनका भी ब्लेम है, सिर्फ तुम लोगों का नहीं। Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among up and never us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि उनके पास एक की है टू द प्रिजन, कि भाई अब जैसे अगर आप बोलते हैं अगर प्रिजन में हो, तो अगर आप की है, आपके पास प्रिजन की चाबी है, तो आप उसको खोल के बाहर आ जाओ। तो वैसे ही ये बोल रहा है कि अगर आपको मातृभाषा आती है तो आप क्या बोल सकते हो कि हम स्ट्राइक कर सकते हो, भाई हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हमको फ्रेंच चाहिए, फ्रेंच चाहिए, अगर आपको आती हो तो। हाँ, तो इसलिए वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत लॉजिकल है, कभी आप इसको भूलेंगे नहीं, सब आपको याद रहेगा, तो ऐसे वो बोल रहा था। देन अब उसने ग्रामर की बुक खोली, देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसने अपनी ग्रामर की बुक खोली और उसे पढ़ाने लगा लेसन। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब वो लास्ट चैप्टर, लास्ट लेसन था, तो उसको समझ में, अभी तो बहुत अटेंटिव होकर पढ़ रहे थे, जब हम फोकस्ड होते हैं तो हमें सब समझ में आता है। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, कितना इजी चैप्टर था। मैं ऐसे बोलते ना, कितना इजी चैप्टर था, काश मैं इनसे पढ़ लिया होता, काश ये कर लिया होता, फिर हम ड्रीम में चले जाते हैं, अरे यार काश काश।
ऐसा हो गया और था। तो वो मतलब हाँ, ठीक है। That I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so. Okay, this is a map of the France, sketch map, not to scale. ठीक है। फिर एक और वो भी बोल रहे थे इतने पेशेंस से इन्होंने पढ़ाया भी नहीं, पहली बार ही पढ़ा रहे हैं वो, अगर इतनी पेशेंस से पढ़ा रहे हैं तो। क्योंकि इनका लास्ट चैप्टर वो चाहते हैं कि उनके सारे बच्चे अटेंटिव होके पढ़े, सारे जो विलेजर्स है वो अटेंटिव होके पढ़े। So it seemed almost as if the poor man wanted to give us all the new before going away and to put it all into our heads at one stroke. वो चाहता था, एम हैमल चाहते थे कि एक बार में सब इनके दिमाग में घुस जाए, एक बार में सब इनके दिमाग में घुस जाए, जो भी मुझे पता है, मुझे आता है, मैं इनके दिमाग में घुसा दूँ कि जब मैं जाऊँ तो उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो, पूरी चीज़ हो। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर के बाद इनके पास एक लेसन था राइटिंग का। ठीक है, हमें एक चीज़ बताना भूल, ठीक है, मैं पाया वो, हाँ, ये रहा, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी याद करना, इसको, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, भी पूछा जा सकता है। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और ये हो रहा है कि वो अपने मतलब ये जब वो बोल रहा है तो अपने वो सारे जो भी इमोशंस है ना उसके वो बाहर निकालना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है कि हाँ ऐसा, वो मतलब बहुत दुखी है ना, तो वो जस्ट वो अपने इमोशंस को डाल रहा है, वेंटिंग आउट हिज इमोशंस, आउट मतलब फेंक रहा है अपने इमोशंस को, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। बहुत सैड इसका है ना, इसलिए बल्कि 40 इयर्स बहुत होते हैं ना, इसलिए सब बात है। हाँ, the day M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, ऐसे अच्छे से लिखा हुआ है curve में, France, Alice, France, Alice. They looked like a little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. उसको अब उसमें हम नारे लगा रहे हैं, फ्रांस एलिस, एलिस में फ्रांस चाहिए, हमें फ्रांस चाहिए, फ्रांस चाहिए, ऐसे ऐसे और ऐसे लग रहा है कि फ्लैग्स फ्लोट हो रहे हैं कि फ्रांस, फ्रेंच सीखनी है, फ्रेंच में फ्रांस, सॉरी एलिस में फ्रांस सीखनी है, जर्मनी नहीं सीखनी है, हमारी मातृभाषा नहीं है जर्मनी, ऐसा ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो वो उस समय ना एक नई बुक लाए थे कि, और उस कवर पेज में ही लिखा था फ्रांस एलिस, जैसे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. The only sound था वो ये, ऐसे लिख ही रहे थे, ऐसे ये साउंड आया था कि टेबल हिल रही है, वो लिख रहा है, ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ये साउंड है, ये सब अटेंटिव थे, वो लास्ट था तो सब अटेंटिव होके उसको अच्छे से कर रहे थे। Okay, so over the paper, once some leaves flew in, but nobody paid any. कुछ हाउस फ्लाइज आई होंगी अंदर, पर कोई पेड नहीं, सब अपने लिखने में ध्यान दे रहे हैं, लिखने में सब अपना ध्यान दे रहे हैं, कोई कोई इधर उधर नहीं, कोई चूकी आवाज नहीं, ठीक है। बट nobody paid any attention to them, not even the littlest ones. जो बच्चे थे उन्होंने भी नहीं देखा और वो भी पढ़ते रहे, who worked right on tracing their fish books, जो उनको ट्रेसिंग बुक्स मिली थी ना, जैसे बच्चों को मिलती है, तो वैसे ही वो उसको ट्रेस कर रहे थे, तो उनको भी नहीं दिखा। On the roof the pigeons cooed very low and I thought to myself, वो मतलब ऐसा था ना फ्रांस कि भाई तुम लिख रहे हो, तुम फोकस भी कर रहे हो, तो तुम यहाँ वहाँ पे देख रहे हो, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ तो था। तो अब वो ये सोच रहा है, क्या सोच रहा है, उसने खुद को ही बोला, when they make them sing in German even the pigeons। अब वो हमें जर्मन सिखा रहे हैं, हमको फ्रेंच से हटा कर हमारी मातृभाषा से हटा कर
हमको जर्मन सिखा रहे, तो क्या इन पिजन्स को भी वो जर्मनी में बोलेंगे कि सिखाओ? ये लोग भी अपनी लाइवलीहुड मतलब अपनी मातृभाषा को छोड़कर या अपना जो भी जैसे भी जी रहे थे लोग, उनको हटाकर ये बोलेंगे कि अब तुम जर्मनी में रहो। क्या ऐसा होगा? Whenever I looked up from my writing, ऐसे वो देखा ऊपर, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy. तो वो जस्ट ऐसे ही देख रहा था, जैसे उसने लिखने से ऊपर किया तो वो देख रहा कि एम हैमल यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, पूरी वो वहाँ से वहाँ सब ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि उनको सब वो अपने दिमाग में बिठा ले कि हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है, चेयर यहाँ रखी थी, वो यहाँ रखा था, पॉट वहाँ रखा था, सब ऐसे मतलब वो गार्डन क्या बोलते हैं फ्लावर पॉट, वो वहाँ रखा है, चेयर यहाँ पे है, वो टेबल यहाँ लगी है, बोर्ड यहाँ लगा है, ऐसा सब कि वो सेट करना चाहते थे अपने दिमाग में जो स्कूल का लिटिल रूम, पूरा वो मेमोरी ट्राई कर रहे थे मेमोरी बनाने के लिए। For 40 years, he had been there in the same place. 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that, only the desks and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. क्योंकि अब ठीक है, तो अब वो लीव कर रहे थे कंट्री को, तो वो अब वो सब मेमोरी बनाते थे। 40 इयर्स तक हो रहा, उसने एक ट्री उसने प्लांट किया था, मतलब हॉपवाइन ट्री उसने प्लांट किया था, वो विंडो से हमेशा देखता था, वहाँ पे वो गार्डनिंग करता था, वहाँ पे वो सब करता था, और उसको एकदम से आवाज़ आई, उसकी हार्ट ब्रोकन हिज हार्ट कि भाई पुअर मैन, उसकी बहन ऊपर जो फ्लोर है ऊपर वाला वहाँ पे जा रही है, वहाँ पे उसका बैग पैक सब बहन भाई अपने बैग पैक कर रहे थे, कल नेक्स्ट डे हम निकल जाएंगे यहाँ से, तो सब ऐसा हो रहा है। तो ऑब्वियसली अब सैड लगे 40 इयर्स वो वही उसने अपना गार्डनिंग किया, उसने अपना प्लांट लगाया, उसमें पानी दिया, उसमें अपने अच्छे खेत उगाए, या उसमें बहुत मतलब पूरा गार्डन टाइप का बनाया, मतलब अच्छा है, मतलब वो सेकेंड हाउस था उसका, तो वो अपने हाउस से जा रहा था, लीव कर रहा था। अब आप सोचो ना कि आप इस घर में मतलब अपने घर में बहुत सालों से हो, अब आप उस घर से जा रहे हो, तो आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी जिससे भी आपको लगाव है, आपका कुछ भी है, तो आपको दुख होगा, उसको दुख होगा, तो ऐसे ठीक है। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history. जब अब राइटिंग खत्म हुई और उनका एक लेसन था हिस्ट्री में, ठीक है, उनका एक लेसन था हिस्ट्री में, ठीक है, कौन सा था? And then the babies chanted their baby, bee, bo, boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his pen, reading book. And both hands spelled the letters with them. मतलब वो भी जो ओ हाउसर है वो भी बा बा बी बी बू बू ऐसे वो बोल रहा था याद करने के लिए। You could see that he too was crying. मतलब आवाज़ हो जाती है ना ऐसी रोने वाली। His voice trembled with emotion, and it was funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it, that last lesson. कैसे मैं अच्छे से वो कर रहा हूँ लास्ट लेसन, मतलब ऑब्वियसली आपको होता है तो अब सबको रोने, अब उसकी आवाज़ आप सुन रहे हो ना, तो आपको हंसने का भी मन कर रहा है, रोने का भी मन कर रहा है,
और आपको लास्ट लेसन में वो ध्यान है, अरे लास्ट लेसन है, अब अब फ्रेंच पढ़ेंगे नहीं, ऐसा हो मतलब होता है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। चर्च क्लॉक घंटी बज जाती है, 12 स्कूल एंड हो गया। देन द एंगलस। At the same moment, the trumpets of the Persians returning from them. अब वो ड्रिल कर रहे थे, वो मार्च पास्ट तो प्रैक्टिस कर रहे थे या कमांड प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी वापस आ रहे थे ड्रिल से। Surrounded under our windows. M. Hamel stood up. M. Hamel ऐसे खड़ा हुआ, पूरे पेल फेस से, मतलब उसने कभी देखा नहीं ना पर अब obviously sad था, तो पेल फेस से I never saw him look so tall. वो कुछ बोलना चाहता था। My friends, said he, उसने बोला, I, but something choked him. He could not go on. पर वो सैडनेस, वो सब मेमोरीज हो रही थी ना, तो वो कुछ बोल नहीं पाया, कुछ गला, कुछ मतलब वो रोने की हालत में था, तो वो उस हालत में वो बोल नहीं पा रहा, वो जेस्चर्स वो नहीं शो कर पा रहा। तो उसने सिर्फ वो आए आज मैं कुछ बोलने वाला था, तो उस पर अटक गया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। देन वो अपने ब्लैक बोर्ड पे ऐसे टर्न हुआ। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसने टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड bearing on with all his might he wrote, उसने लिखा as large as he could, जितना बड़ा वो लिख पाता उतना उसने लिखा, वी ला फ्रांस, वी ला फ्रांस लिखा उसने। और फिर उसने nearly stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go। तो उसने जस्ट अपना ये किया, मतलब ये वॉल है और ऐसे उसने अपना सर अपने वॉल से लगाया, जैसे ये वॉल समझो, तो वॉल है, उसने ऐसे सर जो सर है वो वॉल से लगाया और ऐसा जेस्चर दिया, वो ऐसा जेस्चर दिया, जा जा, स्कूल ओवर हो गया, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो। तो जो लोग थे वो खाली हो गए, वहाँ से चले गए लोग। अब ऑब्वियसली क्या कर सकते, तो जो क्लास थी वो पूरी एम्प्टी हो गई। सो हाँ, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप चाहते हो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स इनके, एम हैमल के और ये फ्रांस के कैरेक्टर स्केच, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके बोर्ड्स में आएंगे तो या यूनिट टेस्ट में आते हैं, तो मैं आपको दूँ, तो प्लीज़ कमेंटेड, और कोई भी डाउट हो कमेंट करना। सो दिस ऑल फॉर टुडे। लाइक और सब्सक्राइब तो करो, लाइक सब्सक्राइब है ही नहीं क्या, सब्सक्राइब भी करो, पढ़ रहे हो सब्सक्राइब करो, तो जिससे आपको पता चले कि मेरा कौन सा लेक्चर आने वाला है इसके बाद, तो सब्सक्राइब करो ना। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को, बस यही बोलूँगी। बाय, ऑल द बेस्ट।